Hello everyone. As we all know that CUET exams are approaching. It's less than a month in the examination. So this video is for the students who are appearing in the CUET exam and all those who have opted for GAT paper. So in this video, we will be learning about how we can solve various questions which were asked in the previous years in the GAT examination. So already we are having the videos on all the topics related to competitive examinations. So if there is any of the problem in any of the topic, you can go through the video. Otherwise over here, we will be learning how we can solve the various questions. Hope this video will help you in the preparation of the GAT paper. So here is the first question. If 36 is to 84 is in proportion with 42 is to x, then the value of x is. Over here, there are two ratios are there. One of the ratio is 36 is to 84. Another ratio is 42 is to x. When the two ratios are equal, we say that the two ratios are in proportion. And in the condition of proportion, the product of means is equivalent to product of extremes. ये हमें पता ही है कि यदि दो रेशोज इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो रेशोज हैं वो प्रपोर्शन में हैं. उस कंडीशन के अंदर जो बीच में नंबर होते हैं दे आर मीन्स और जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स. और इन दिस कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होता है यानी जो मीन्स पे हैं उनका जो प्रोडक्ट है इट विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. दैट मीन्स 84 मल्टीप्लाइड बाय 42 it will be equivalent to 36 multiplied by x. We have taken product of means, it is equivalent to product of extremes. So from here what the value of x will be? X will be equivalent to 84 multiplied by 42 divided by 36. Now they are divisible by 12. 12 3s are 36, 12 7s are 84. Now 3 1 is 3 and 3 4 is 12. 14 7 is your 98. So the value of x will be your 98. The second question is Ram purchased a watch at a cost of 9/10th of the original cost and sold at 8% more than the original cost. His profit or loss percentage is. What's the profit and loss percentage that we have to calculate? Now over here what is given to us is that the cost means the watch is purchased at 9/10th of the original cost. So we are assuming that original cost being, let the original cost be rupees 100. We are assuming that the original cost is rupees 100. So if the original cost is 100 rupees, so what the cost price of the watch will be? Cost price is 9/10th of the original cost. That means 9/10 multiplied by 100. 0 cancelled, it is your 90 rupees. So cost price is 90 if the original cost is your 100 rupees. And what the selling price is? Selling price is 8% more than the original cost. Original cost is 100 and 8% of 100 will be 8 rupees. That means selling price is 100 plus 8, that is your 108 rupees. So over here original cost was 100, cost price is 90 and the selling price is 108 rupees. So what the profit will be? The formula for finding profit is selling price minus cost price. Selling price is 108 rupees, cost price is 90 rupees, so profit is of 18 rupees. Now if the profit is 18 rupees, what the profit percentage will be? The formula for finding profit percentage is profit divided by cost price multiplied by 100. So profit is of 18 rupees, cost price is of 90 rupees multiplied by 100. So 18 5 is 90, 5 20 times 100. So profit percentage will be your 20%. So there will be profit of 20%. So this is how we can solve the questions using the formulas. So here is the third question. Question number 3 is arrange the simple interest of following cases in decreasing order. There are 4 conditions are given to us. We have to calculate simple interest in each and every case, and whatever the simple interest we will be getting, we have to arrange it in decreasing order. Decreasing order means from bigger to smaller we have to arrange it. So first of all we know that the formula for finding simple interest is P into R into T over 100. Where P is the principal, R is the rate of interest, T is your time duration in years over 100. This is the formula. So for the first condition, that is your A. Simple interest on rupees 6,600. Principal is 6,600
At 5% per annum, 5% is the rate of interest. For 2 years is time duration is 2 years. So this will be P into R into T over 100. Now 2 zeros are going to cancel. 5 into 2 will be 10. 66 multiplied by 10 will be 660 rupees. Is the simple interest in the first condition. In the second condition, simple interest on rupees 200. Principal is 200 rupees at 6% per annum, and for it is your 5 years. So P into R into T over 100 we have done. 0 zeros cancelled. 5 2s are 10 and 10 multiplied by 6 will be your 60 rupees. So for the third condition, simple interest on 840. 840 is the principal. Rate of interest is 5% and time duration is 4 years over 100. 1010 cancelled. 5 2s are 10, 2 2s are 4, and it will be 8 2s are 16, 168 rupees. This is for the third condition. For the fourth condition, simple interest on 5,000 rupees. So principal is 5,000. R is 12% per annum and time duration is 2 years divided by 100. It will be 2 zeros are going to cancel. 50 into 2 will be 100. 100 into 12 will be 1200 rupees. It is 50 into 2, 2 into 12 will be 1200 rupees. Now we have to arrange this in decreasing order from higher to lower. So highest is over here, it is 660, it is 60, it is 168 and it is 1200. So highest is your 1200 rupees. So 1200, that is your D condition. So first of all D will be coming. Then your second is your 660. So D is greater than your A and it is greater than your C and it is greater than your B. This will be the answer. The next question is, 4 circles of equal radius are drawn with centers A, B, C, D such that ABCD is a square of side 14 cm. Means हमें क्या given है, ये जो side है ये एक ABCD एक square है जिसकी जो side है यानी कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD जो है वो हमें given है 14 cm given है. एंड सर्कल्स टच एक्सटर्नली एज इन फिगर. और जो ये सर्कल्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एज इट इज गिवन टू अस इन द फिगर. द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय 4 सर्कल्स. ये जो शेडेड एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये शेडेड एरिया क्या होगा? सो सी, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, अगर हम इन पोर्शंस का एरिया फाइंड आउट कर लें जो कि हमें क्या दिख रहे हैं, सेक्टर्स हैं, क्वाड्रेंट हैं, 1/4 ऑफ योर the whole area of the circle, because this angle will be 90 degree. दिस एंगल जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री होगा और टोटल किसी भी पॉइंट पे जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है. मींस दिस इज अ क्वाड्रेंट. पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका 1/4 एरिया होगा इस वाले पोर्शन का. यानी कि यदि हम टोटल जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से इन सभी क्वाड्रेंट्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल बी गेटिंग एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. So first of all, area of square. Area of a square ABCD. That we know area of the square is side into side and side is given to us as 14. So 14 into 14, that is your 196 centimeter square will be the area of the square. Now over here we can see if from this center to this center, this distance is 14. That means radius of all the circles will be 7. From here A to D, distance is 14. So if this is 14 up to here, it will be your 7. So radius is 7 over here. Radius of all the circles is 7 centimeter, and we know that area of a circle is pi r square. अब ये 1/4 हो गया सर्कल का एरिया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया. यानी कि यदि हम इन सबको ऐड करें इट विल बी इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ 1 होल सर्कल. यानी कि एरिया ऑफ these 4 portions will be area of 1 circle. Area of 1 circle, that is your pi r square. Pi की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, so we will be using 22/7. R की वैल्यू है 7 multiplied by 7 into 7 because it is your r square. 7 से 7 कैंसिल हुआ, so it will be 7 2 14 and 115. 154 centimeter square will be the area of these 4 portions. Now जो required area है, required area और we can say shaded area जो होगा वो होगा area of square minus area of circle.
स्क्वायर के एरिया में से यदि हम सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल बी गेटिंग द शेडेड एरिया. सो इट विल बी एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 196 and area of circle is 154. So it will be 242 centimeter square will be the area of the shaded region. So here are the next questions. So question number 5 is the distance between points A that is -5,7 and B that is -1,3 is. हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सपोज ये हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है, ये कोऑर्डिनेट है जो y1 है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x2 एंड y2 है. तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है यदि उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस यदि हम ab मान लें तो ab जो होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. इसको भी हम a पॉइंट को भी हम x2 y2 मान सकते थे और b को हम x1 y1 भी मान सकते थे. मतलब किसी को भी x1 y1 लिया जा सकता है, किसी को भी x2 y2 लिया जा सकता है. आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा. तो हमने यहाँ पे इसको एक पॉइंट को x1 y1 माना है और b पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको x2 y2 माना है. तो अब जो ab की वैल्यू होगी, ab की जो लेंथ होगी दैट विल बी x2 इज योर -1 minus x1 minus into minus this minus sign we have taken and again this minus sign is there, so minus will become plus of 5 whole square plus y2 is 3 minus y1 is your 7 whole square. So if we are going to solve it further, -1 plus 5 will be 4 and square of 4 will be 16 plus 3 minus 7 will be minus of 4 and square of minus of 4 will be plus 16. तो 16 क्या होता है आपका 4 का स्क्वायर होता है, 16 is the square of 4 यानी कि हम 16 plus 16 करेंगे तो it will be your 32. This could be written as your square root of 32 and 32 could be written as 2 multiplied by 16 also. 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, so it will be your 4 root 2 units. जो भी यूनिट होगी वो यूनिट हम यहाँ पे लेंथ में ले लेंगे. सो जो डिस्टेंस है ए और बी का दैट विल बी 4 root 2 यूनिट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained by 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो. ये हमें 50 में से मार्क्स गिवन है 100 स्टूडेंट्स के, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100. दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास 100 हैं. ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमें मार्क्स ऑब्टेन 20 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स के, 25 हैं 20 के, 28 हैं 24, ये हमें डिटेल्स हमें गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मोड माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि पहले हमें मोड चाहिए, मीडियन चाहिए एंड देन वी विल बी कीपिंग दीज वैल्यूज ओवर हियर एंड वी विल बी गेटिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू अस. नाउ मोड होता क्या है, वो वाली ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम मोड कहते हैं. यहाँ पे यदि हम देखें तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, व्हाट दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इट इज शोइंग, दिस इज शोइंग योर फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ है, 28 इज द मैक्सिमम नंबर. यदि हम यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज को देखें तो 28 इज द मैक्सिमम वन, यानी कि 28 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ये किस ऑब्जर्वेशन की है, ये है 29th ऑब्जर्वेशन की. दिस इज द ऑब्जर्वेशन विच इज हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स जो मोड होगा दैट इज योर 29. मोड कितना हो जाएगा 29. जिस भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे हम मोड कहते हैं. यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 28 और ये है 29 ऑब्जर्वेशन की, दैट मीन्स जो मोड होगा वो होगा 29. अब हम मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारी मीडियन होती है. यदि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है वो यदि इवन होती है, if n is your even number, in that case n upon 2th observation and n upon 2 plus 1th observation का एवरेज जो होता है वो हमारा मीडियन होता है. यदि n जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है वो यदि ऑड होता है, इन दैट केस n plus 1 by 2th जो ऑब्जर्वेशन होती है वही हमारा मीडियन होता है. अब यहाँ पे यदि हम देखें तो n की जो वैल्यू है वो 100 है, विच इज इवन नंबर. दैट मीन्स
अगर हम ये मान लें कि n की वैल्यू 100 है, ये हमें गिवन है, तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी? n/2 विल बी 100/2, दैट इज 50th ऑब्जर्वेशन। जो 50th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो, एंड n/2 प्लस 1 मीन्स 100/2 प्लस 1, यानी कि 50 प्लस 1 51st जो ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों ऑब्जर्वेशन का यदि हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, दैट विल गिव अस मीडियन। जो 50th नंबर की ऑब्जर्वेशन है और जो 51st नंबर की ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों का हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एवरेज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है और 51st ऑब्जर्वेशन कौन सी है? तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यहाँ पे वो ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, क्योंकि मार्क्स पहले 20 लिए हैं, फिर 25, फिर 28, फिर 29, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है और 51st ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो ये देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ की फ्रीक्वेंसी 6 है, 20 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसमें हमने 20 में 6 को ऐड किया तो 26 हो गया। 26 में 24 को ऐड किया तो 50 हो गया। 50 में हमने 28 को ऐड किया तो ये 78 हो गया। अब देखिए, हमारा जो 50 और 51 है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 50th ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारी 28। 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 28 है। और 51st से लेके 78 तक की ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 29 है। यानी 50th नंबर पे ऑब्जर्वेशन 28 आ रही है और 51st वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो 29 आ रही है, यानी कि जो मीडियन होगा वो 28 प्लस 29/2 हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा, दैट विल बी योर 28.5। तो हमारे पास मोड आ गया 29 और मीडियन कितना आ गया? 28.5। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 टाइम्स ऑफ मोड minus 2 times of median. 3 times of mode is your 29 minus 2 times of median is your 28.5. 27, 87, and this will be 2, 16, 17, 7 carry over 1, 57. So it will be your 30. यानी कि वैल्यू जो है 3 टाइम्स ऑफ मोड माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 30 होगी। Now let's understand the next questions. So here is the 7th question. Suppose we throw a dice once, then which of the following are correct? Probability of getting a number greater than 4 is 1/3. Probability of getting a number, conditions, 4 conditions are given to us. So whensoever we will be throwing a dice, what will be the sample space? मतलब हमारे पास possible options क्या क्या हैं, हमारा जो result है वो क्या हो सकता है। तो sample space हमारा क्या हुआ? Either 1 will come और 2 will come और 3 और 4 और 5 और 6। मतलब ये हमारे पास 6 चांसेस हैं कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। ये 6 में से कोई ना कोई एक नंबर ऐसा है जो हमारे डाइस पे टॉप पर आएगा। अब हमारा फर्स्ट कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज 1/3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। अब हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नंबर जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। 4 नहीं इंक्लूड हो रहा है इसमें, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 4 के लिए हमारी फेवरेबल कंडीशंस क्या है? 5 है या फिर 6 है। यदि 5 आता है या फिर 6 आता है डाइस पर, तो ये दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। बाकी की 1, 2, 3, 4 ये हमारी फेवरेबल कंडीशन में नहीं आती फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस कितनी हुई? 1 and 2. 2 are the number of favorable condition and total number of possible conditions is, total number of possible outcomes is your 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फर्स्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा? ये 2/6, that is your 1/3। और हमें 1/3 ही given है, that means A is correct।
Now the B is probability of getting a number greater than or equal to 4. यहाँ पे 4 भी इंक्लूड कर लिया है और नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। तो अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हो जाएंगी? फेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगी 4 भी फेवरेबल है, 5 भी फेवरेबल है, 6 भी फेवरेबल है, क्योंकि नंबर इक्विवेलेंट टू और ग्रेटर देन 4 है, यानी कि 4 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा, 6 भी होगा। तो फेवरेबल आउटकम होगा 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 6। दैट मीन्स 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी। पर यहाँ पे हमें गिवन है 1/3, दैट मीन्स जो बी है वो फॉल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, 3 के इक्वल भी चलेगा और लेस देन 3 भी चलेगा। तो लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू 3 कौन कौन से हमारे फेवरेबल कंडीशंस हैं? या तो 1 आए या फिर 2 आए या फिर 3 आए। 1, 2, 3 तीनों ही हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 इज द फेवरेबल कंडीशन। सो 1, 2, 3 इज फेवरेबल कंडीशन। टोटल इज योर 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6, so it is your 1/2. That is only given, that means C is correct. Now probability of getting a number less than or equal to 6, less than or equal to 6। तो यदि हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी के सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस है, जो हमारे फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो ये सारी की सारी फेवरेबल कंडीशन है और यही हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम भी है। यानी कि फेवरेबल कंडीशन इज योर 6 एंड total possible outcome is even 6, so probability will be 1. That means D is even correct. वैसे भी इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स, जो 100% होने ही होने हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन इवेंट्स की होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि यहाँ पे आपके करेक्ट कौन कौन से हैं? A, C and D are the correct ones. The next question is match list first with list second। ये हमें लिस्ट गिवन है, हमें मैच करनी है। इन तरीके के क्वेश्चंस में हम 1 या 2 पार्ट करने के बाद भी अपने ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं। यदि हमारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें कोई भी और मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के आंसर से मैच कर रहा है, तो हमें सारे पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वी कैन टिक द करेक्ट ऑप्शन। लाइक इन दिस क्वेश्चन, ये हमारा कैलकुलेशन में काफी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यदि फर्स्ट पार्ट करके और सेकंड पार्ट करके हमें लगता है कि हमारे जो ऑप्शंस गिवन हैं उन ऑप्शन में से हमारे करेक्ट हम ऑप्शन निकाल पा रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन है जो हमारी इन आंसर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको टिक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल द 4 ऑप्शंस। सो हियर द फर्स्ट इज, हियर इट इज योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यदि हमारा है NPR, मतलब परम्यूटेशन है, आउट ऑफ n वी हैव टू सेलेक्ट एनी r ऑब्जेक्ट्स। तो NPR जो है इसके ऑप्शंस कितने होंगे? दैट इज नोन फॉर्मूला इज factorial of n over factorial of n minus r. This is the formula for finding value of NPR. Factorial का मतलब क्या हुआ? n, अगर फैक्टोरियल n है तो इसका मतलब हुआ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। यानी कि यदि फैक्टोरियल ऑफ हमें 5 गिवन है, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 5। सिमिलरली फैक्टोरियल ऑफ n क्या होगा? n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का जो प्रोडक्ट होता है वो हो गया आपका फैक्टोरियल ऑफ n। ये हुआ NPR का फॉर्मूला। यदि NCR कॉम्बिनेशन है तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल ऑफ n ओवर फैक्टोरियल ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। अब हम इसको यूज करते हुए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। 8p3 माइनस 10c3। 8p3 यहाँ पे n की जगह है 8, r की जगह है 3, तो इट्स वैल्यू विल बी फैक्टोरियल ऑफ 8 divided by factorial of 8 minus 3. This is the value of 8p3 minus 10c3. 10c3 की वैल्यू क्या होगी? Factorial of 10 divided by factorial of 3 multiplied by factorial of 10 minus 3. Now we will be solving it further. तो ये हो गया हमारा factorial of 8 और नीचे है हमारे पास factorial of 5. 8 minus 3 will be 5. तो हमने factorial 8 को लिखा 8 into 7 into 6 इंटू फैक्टोरियल 5 आएगा और डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल 5 है और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 है इसलिए हमने यहाँ पे लाके छोड़ा जिससे कि कैंसिल हो जाए, हमें आगे फर्दर मल्टीप्लाई ना करना पड़े। माइनस ऑफ फैक्टोरियल 10 को हमने लिखा 10 इंटू 9 इंटू 7 8
इंटू फैक्टोरियल ऑफ 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 को लिखा 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 7। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 3 3s are 9, 2 4 is 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 7 is 42, 42 हुआ, 8 2s are 16, कैरी ओवर 1 and 4 8 is 32 and 1 33, minus of 4 3s are 12, 120, so it will be 6, 3 minus 2 will be 1, 216। यानी ए का ऑप्शन क्या हो गया 216, ए और ये मैच कर गया। अब हम आते हैं बी पर। तो पहले हम हमारे आंसर्स में देख लेंगे कि ए का ऑप्शन सी कितने ऑप्शंस में हमारे आ रहा है। तो हम सपोज 2 में आ रहा है तो मतलब उन दोनों में से ही हमारा कोई ना कोई आंसर है। तो अब हम आते हैं बी पर, 8p5, 8p5 इसकी वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल ऑफ 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 8 माइनस 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो इट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 8 माइनस 5 जो हुआ वो हमारा 3 हुआ, मतलब डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 है। तो 8 7 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो गया। अब हम देखें तो 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 10 तो आ गया हमारे पास। और 2 को हमने 20 को हमने 6 से किया तो 6 इंटू 20 120 हो गया, और 7 7 से 49, 7 8 से 56 हो गया, 56 इंटू 120, राइट। अब देखिए 6 हो नहीं सकता इन दोनों का प्रोडक्ट, 21 इन दोनों का प्रोडक्ट हो नहीं सकता, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 6720 ही होगा, क्योंकि 0 तो आना ही है यूनिट प्लेस पर। सेकेंडली 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, यानी कि टेंस प्लेस पे 2 भी आना है, ये फिक्स है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू ये होगी, हमें फर्दर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी योर 6720 ओनली, क्योंकि 6 हो नहीं सकता, 21 हो नहीं सकता, तो दिस इज ओनली द पॉसिबिलिटी। ये हमारा हो गया बी ऑप्शन। वैसे जनरली 2 पार्ट करने के बाद हमारा ऑप्शन में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी यदि डाउट है तो वी कैन सॉल्व, वी शुड नो हाउ टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स इवन। नाउ इट इज योर NP4 की वैल्यू हमें गिवन है 360, NP4 की वैल्यू 360 गिवन है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, पहले तो हम यहाँ पे इसको यदि एक्सपांड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इट विल बी फैक्टोरियल ऑफ n ओवर फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4, इट इज इक्विवेलेंट टू 360। अब देखिए हम न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल ऑफ n को क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4, इट इज योर 360। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे नंबर्स क्या हैं, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 360 आना चाहिए। तो या तो हम ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं, वरना हम 360 के फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो इट विल बी 2 180 टाइम्स, 2 90 टाइम्स, 2 45 टाइम्स, 3 15 टाइम्स, अगेन 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम। तो इसके फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी एक 5 तो आ ही गया, एक तो नंबर 5 हो गया। अगर हम ले लें एक नंबर 5 है तो 4 तो होगा, 4 भी होगा, तो ये हमने एक नंबर ये 2 इंटू 2 4 ले लिया, एक नंबर 2 इंटू 3 6 ले लिया, और एक नंबर 3 हो गया, यानी कि हमें पर नंबर क्या आ गया 3 4 5 एंड 6, ये 4 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 360 आ रहा है। 360 किसका मल्टीप्लीकेशन है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्विवेलेंट टू 360। तो n की वैल्यू क्या है, n इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स, सो n की वैल्यू क्या है 6 है। व्हाट द वैल्यू ऑफ n विल बी, इट विल बी योर 6। सो ये हमारा इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये 6 हो गई। नाउ द लास्ट, ये वैसे 21 ही होगा, लेकिन फिर भी यदि हम देखना चाहें कि ये सॉल्व कैसे होता है, तो हमारे को गिवन है NC2 210 गिवन है, और हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। तो NC2 जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से एक्सपांड होगा, इट विल बी फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2, it is equivalent to 210, it is given to us. Now numerator could be written as फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2
divided by factorial of 2 will be 2 only, multiplied by factorial of n minus 2 is 210. Factorial n minus 2 से n minus 2 कैंसिल हो गया, ये हुआ n into n minus 1, it is equal to 2 will be multiplied by 210, that will turn to 420. अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 420 आना चाहिए. जीरो आ रहा है यानी कि एक डिजिट तो जीरो वाली होगी, मतलब जिसके वंस प्लेस पर आपका जीरो होगा, और 42 आ रहा है. तो यदि हम देखें तो 20 और 21 ऐसे नंबर्स हैं, यदि हम 20 को 21 से मल्टीप्लाई करें, सो 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 420 आ रहा है. यानी कि ये नंबर्स क्या हुए, 20 और 21 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा. अब n क्या है, ग्रेटर है n और n माइनस 1 से, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हुई, 21. So from here we will be getting the value of n as your 21. Although we have to save the time in the examination, तो हमें इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. हम दो पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमें मोस्टली आइडिया लग जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा पॉसिबल है, उसको हम टिक कर सकते हैं. हमें सभी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. So here is the 9th question. The present age of a father is 4 years more than double the age of his son. After 10 years, the father's age is 30 years more than his son. Then the present age of father is. तो जो अभी प्रेजेंट एज फादर की है वो 4 years मोर दैन डबल द एज ऑफ द सन है, यानी कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो सन की प्रेजेंट एज पे डिपेंड कर रही है. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x years. जो प्रेजेंट एज सन की है वो x years है, तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी, it is 4 years more than double the age of the sun. So double the age of the sun will be 2x, or 4 years more means 2x plus 4 years will be the present age of the father. अब 10 years के बाद जो फादर की एज है वो 30 years more than the age of the sun होगी. अब 10 years के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, x plus 10 years हो जाएगी, और फादर की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 10 years, it will be 2x plus 4 plus 10, और वी कैन से 2x plus 14 years हो जाएगी आफ्टर 10 years. 10 years के बाद रिलेशन क्या गिवन है कि जो फादर की एज है वो सन की एज की 30 years मोर हो जाएगी. यानी कि यदि हम सन की एज में 30 years ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगी, या फिर हम 30 years फादर की एज में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी दोनों इक्वल हो जाएगी. तो हम कैसे भी कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x plus 10 plus 30 will be equivalent to your 2x plus 14. If we will be solving it further, हम इस x को लेके जाते हैं RHS में और इस 14 को ले आते हैं LHS में. So 10 plus 30 will be your 40. 40 minus 14 will be your 2x minus x, that is your x. तो x की वैल्यू कितनी है, 40 minus 14 है. That means value of x is your 26 years. यानी कि जो प्रेजेंट एज है सन की वो कितनी है, 26 years है. लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमें फाइंड करनी है, जो कि कितनी है, 2x plus 4 है. यानी कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x plus 4 की. दैट विल बी 2 multiplied by 26 plus 4, that is your 52 plus 4, और वी कैन से इट विल बी योर 56 years. यानी कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 56 years है. The next question is the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter along the same straight line from the base of the tower are complementary. Find the height of the tower. तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो हमारा टावर है, इससे ये हमारा बेस ले लिया हमने टावर का, इसके 2 पॉइंट्स पर एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख रहे हैं इस टावर के टॉप का. तो यानी कि इस पॉइंट से यहाँ टॉप है यदि ये टावर का, तो ये हो गया एक एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इस पॉइंट से टॉप का, ये हो गया दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन. ये जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं. दैट मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी योर 90 डिग्री. यानी कि यदि ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी योर 90 माइनस थीटा. अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा. अब इन पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी है बेस से, सपोज हम ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी और ये डी. तो इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो हमें 5 मीटर एंड 20 मीटर गिवन है. सो दिस डिस्टेंस इज योर 5 मीटर.
and this distance is 20 meter. It is given to us. और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर. हम ये मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो h है. तो हमें यहाँ पे यूज क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर काम में आ रहा है हमें, और एक हमें बेस काम में आ रहा है. तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से रेशो में आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है, इट इज योर इन tan थीटा. तो वी नो tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. दिस इज द फॉर्मूला. तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हमें बेस चाहिए, सो वी विल बी यूजिंग tan थीटा. सो पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ACD. ACD ट्राइंगल लिया, तो ACD ट्राइंगल में tan थीटा विल बी, perpendicular is h and base is your 5. So h upon 5 is your tan theta. अब हम ट्राइंगल ले ABD. इस ट्राइंगल के अंदर tan 90 माइनस थीटा, बिकॉज यहाँ पे थीटा कितना है, एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है. सो tan 90 माइनस थीटा विल बी, परपेंडिकुलर इज योर h and base is your 20. वी नो कि tan 90 माइनस थीटा इज योर cot थीटा. tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने देखा है tan 90 माइनस थीटा इज योर cot थीटा. सो दिस कुड इवन बी रिटन एज cot थीटा इज इक्विवेलेंट टू h over 20. नाउ वी अगेन नो दैट tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन cot थीटा. जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा होता है. यानी कि यदि हम यहाँ देखें tan थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे h अपॉन 5 है. इट इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन cot थीटा. सो 1 अपॉन cot थीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन 20 है. सो दिस h विल बी हियर इन द डिनोमिनेटर एंड 20 विल गो इन द न्यूमरेटर. सो इट विल बी h मल्टीप्लाइड बाय h विल बी और h स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 100. सो व्हाट द वैल्यू ऑफ h विल बी, इट इज प्लस माइनस 10. तो निगेटिव तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि टावर की हाइट जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती. सो वी विल बी कंसिडरिंग इट एज 10. Unit is meter, so 10 meter. So height कितनी होगी टावर की, it will be your 10 meters. So here are the next questions. Question number 11. P and Q can complete a job in 24 days working together. P can alone complete it in 32 days. Both of them worked together for 8 days and then P left. The number of days Q will take to complete the remaining job is. इनिशियली पी और क्यू ने साथ में काम किया. अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो 24 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं. अगर पी अकेला काम करता है तो उसे पूरे काम को कंप्लीट करने में 32 डेज लगते हैं. अब दोनों ने साथ में काम किया, 8 डेज तक दोनों ने साथ में काम किया. उसके बाद पी ने काम छोड़ दिया. तो अब जो रिमेनिंग वर्क है उसे क्यू को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यदि हम देखें तो पी और क्यू दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर रहे हैं 24 डेज में. यानी P और Q दोनों का मिला के 1 डे का वर्क कितना है, 1 अपॉन 24. यानी दोनों साथ में काम करते हैं तो वो 1 डे के अंदर 1 अपॉन 24 वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं. अब यदि हम P को देखें, P को अकेले को काम करने में 32 डेज लग रहे हैं. यानी कि P का 1 डे का वर्क कितना है, P 1 डे में 1 अपॉन 32 वर्क कंप्लीट कर लेता है. जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 1 डे में 1 अपॉन 24 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, और जब P अकेला काम कर रहा है तो वो 1 डे में 1 अपॉन 32 वर्क कंप्लीट कर रहा है. तो Q 1 डे में कितना काम कर रहा है, Q का 1 डे का वर्क कितना हुआ, दोनों का मिलाकर काम हुआ 1 अपॉन 24, और P का अकेले का काम हुआ 1 अपॉन 32. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि Q ने 1 डे में कितना काम किया. तो Q का 1 डे का वर्क कितना हुआ, इट विल बी 4 16 96 will be the LCM. 24 into 4 will be 96 and 32 into 3 will be 96. That is your 1 upon 96. यानी कि Q का 1 डे का वर्क है 1 अपॉन 96. यानी कि Q अगर अकेला काम करता तो उसको 96 डेज लगते काम को कंप्लीट करने के लिए. अब P और Q ने दोनों ने मिलके 8 डेज तक काम किया है. तो 8 डेज में यदि P और Q दोनों मिलके 1 डे में 1 अपॉन 24 वर्क कर रहे हैं तो वो 8 डेज में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, इट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 24. इतना काम दोनों मिलके 8 डेज में कर लेंगे. तो 8 3s are 24, यानी कि 1 अपॉन 3 वर्क कंप्लीट हो जाएगा 8 डेज के अंदर. अब यदि 1 अपॉन 3 वर्क कंप्लीट हो गया है तो काम बचा कितना है जो कि करना है, जो कि क्यू करेगा. तो रिमेनिंग वर्क विल बी
remaining work is, total work was 1, out of this 1/3 has already been done, so it will be 2/3 work is still remaining, it is still to be done. अब कितने दिन लगेंगे Q को काम को कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क। यदि हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि Q को काम को, जो रिमेनिंग काम है उसको कंप्लीट करने में कितने दिन और लगेंगे। सो वर्क टू बी डन इज 2/3, वर्क अभी और करना बाकी है, और Q का 1 डे का वर्क है 1/96। सो इफ वी विल सॉल्व इट फर्दर, इट विल बिकम 2/3, 96 जाएगा हमारा न्यूमरेटर के अंदर। 3 2s are 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 2s are 6. So it will be 2 2s are 4, 2 3s are 6, 64 days। 64 days और लगेंगे। जो रिमेनिंग 2/3 वर्क है वो यदि Q अकेला करता है तो उसको कंप्लीट करने में it will take 64 more days। The next question is, a person rows a boat 10 kilometers along the stream in 30 minutes। 30 minutes में वो along the stream बोट को रो कर रहा है। यदि along the stream कर रहा है, that means जो स्पीड होगी, यदि बोट की स्पीड यदि हम माने कि u किलोमीटर, इट इज इन किलोमीटर ओनली, तो u किलोमीटर पर आवर है, और आपकी स्ट्रीम की स्पीड v किलोमीटर पर आवर है। तो हमारी जब वो अलोंग द स्ट्रीम मूव कर रहा है उस समय स्पीड कितनी होगी, इट विल बी u प्लस v किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 40 मिनट्स, यानी कि लौटते वक्त जब स्पीड होगी दैट विल बी और u माइनस v किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। We know that the formula for finding speed is distance over time। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो अब देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में 10 किलोमीटर का ट्रैवल हो रहा है, पहले भी 10 किलोमीटर है, बाद में भी 10 किलोमीटर है। तो फर्स्ट कंडीशन में स्पीड कितनी है हमारी, u प्लस v है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, और आपका टाइम टेकन कितना है, 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स को यदि हम आवर्स में चेंज करें तो क्या होगा, ये हमारा डिनोमिनेटर में आना है टाइम, तो 30 मिनट्स हमने यहाँ लिया, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स। दैट मीन्स वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 60। 30 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो इट विल बी योर 30 इंटू 2 इज 60, 2 इंटू 10 इज योर 20 किलोमीटर पर आवर। u प्लस v की वैल्यू कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। अब सेकेंड कंडीशन देखें, जब वो रिटर्न बैक हो रहा है, इन दैट कंडीशन स्पीड इज u माइनस v, डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है हमारा 10 का ही, एंड टाइम टेकन इज योर 40 मिनट्स। टाइम टेकन इज 40 मिनट्स। सो 40 मिनट्स को क्या लिखेंगे, 40/60 आवर्स, या फिर 40 इधर डिनोमिनेटर में लिया, 60 हमने न्यूमरेटर में ले लिया। 20 2s are 40, 20 3s are 60, 2 5 is 10, 5 3s are 15 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो हमारे रिटर्निंग में स्पीड होगी। अब यदि देखें यहाँ पे u प्लस v की वैल्यू 20 है, u माइनस v की वैल्यू 15 है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें v की। तो u प्लस v की वैल्यू हमारे पास 20 है और u माइनस v की वैल्यू हमारे पास 15 है। अब यहाँ पे v जो है वो अपोजिट साइन के साथ है, तो यहाँ से यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि v कैंसिल हो जाएंगे। और यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस u हो गया, ये प्लस v हो गया, और ये माइनस का 15 हो गया। इन दोनों को हमने कैंसिल किया, प्लस u माइनस v, u प्लस v विल बी 2 टाइम्स ऑफ v। 20 minus 15 will be 5. So what the value of v will be, 5/2, or you can say 2.5 kilometer per hour will be the speed of the stream। यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते वहां से हमें u की वैल्यू मिल जाती, और यदि हम u की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट करते तो हमें v की वैल्यू मिल जाती। तो एनी हाउ वी कुड हैव डन इट। सो दिस इज हाउ वी कैन इवन डू, डायरेक्टली हमें v की वैल्यू मिल सकती है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Now let's understand last two questions. So here is the 13th question. The unit place digit of number 37 whole square is। अगर हम 37 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। So it is a very easy question।
37 को हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 7 इज 49, सो 9 विल बी कमिंग एट द यूनिट प्लेस। बाकी हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि हम 37 को 37 से मल्टीप्लाई करें, सिंपली यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 इंटू 7 करने पे हमारा आ रहा है 49, 49 में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 9, यानी कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगी, 9 आएगी। The last question is, in a flower bed there are 23 rose plants in the first row. First row में 23 rose plants हैं, 21 in the second row, 21 second row में है, third row के अंदर 19 है, and so on. There are 5 rose plants in the last row. जो last row है उसमें 5 rose plants हैं. The number of rows in flower bed is, flower bed में कितनी rows होंगी, that we need to find it out. देखिए वैसे तो ये नंबर बहुत ही स्मॉलर नंबर है तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इवन वी कैन डू 23 देन 21। हम यहाँ देख सकते हैं सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 23 के बाद 21 -2 करने पर आया, फिर -2 किया, फिर -2 करेंगे तो 23 21 19 देन 17 देन 15 देन 13 then 11 then 9 then 7 and then 5। तो कितनी रोज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर हो गया हमारा 10 रोज। दिस इज द इजीएस्ट मेथड। अब यदि इसको हम फॉर्मूले से कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सीरीज बन रही है ये सीरीज जो है वो एपी के अंदर है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 23, कॉमन डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1 इट इज 21 माइनस 23, d की वैल्यू है -2। an nth जो टर्म है वो हमें गिवन है 5, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन से नंबर की टर्म जो है वो 5 है, nth नंबर की जो टर्म है वो 5 है वो हमें पता है, पर n की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो वी नो द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के अंदर हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्लास 10। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें गिवन है 5, a की वैल्यू गिवन है 23, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, d की वैल्यू है -2। सो हमने इस 23 को लिया लेफ्ट हैंड साइड में, सो इट विल बिकम 5 माइनस 23, इट इज इक्विवेलेंट टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब यदि हम 5 माइनस 23 करेंगे सो बिगर नंबर इज ऑफ नेगेटिव, सो इट विल बी -18। ये -2 हमने डिवीजन में ले लिया बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लिकेशन विद n-1, सो वी हैव टेकन इट इन डिवीजन, इट इज द वैल्यू ऑफ n-1। तो ये हो गया हमारा 9 टाइम्स, तो n-1 की वैल्यू 9 है तो 9 दिस -1 विल कम ओवर हियर, दिस विल बिकम योर वैल्यू ऑफ n विल बी 10। तो या तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यदि ये नंबर बहुत बिगर होते इन दैट केस या फिर गैप बहुत ज्यादा होता उस केस में इट इज ईजी टू यूज द फॉर्मूला, बट बिकॉज ये नंबर हमारे पास बहुत स्मॉलर नंबर्स थे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, तो हम टाइम सेव करने के लिए इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। These are the same question. Soon we'll be coming with the more questions which were asked in the previous years. Hope it is clear to you. Till then, thank you.